Okay, Rahul, I we have already studied self-introduction part in the last session. So today, after Harshita's, yes, Harshita is here. Now, Harshita, can you please introduce yourself? Yes, ma'am. Okay. My name is Harshada Srivastav. I am from Basti, UP. I am 23 years old. I am graduate in commerce. I have a 5-year experience in commerce. Uh, I have completed my graduation and recently I am doing CS. If I talk about my family, there are 5 members in my family. My father's name is Mr. Harishan Lal Srivastav. He is an advocate, and my mother's name is Mrs. Savita Srivastav. She is a teacher. I have two brothers, and my one brother is married. So I have a sister-in-law, and I have niece also. My elder brother name is Ashish Kumar Srivastav. He is a software engineer, and my younger brother name is Nitish Kumar Srivastav. He is an assistant professor. My sister-in-law is a housewife and my niece is studying. If I have a couple of hobbies, I'm very much fond of reading books and I love to listening music. Uh, and my aim is to become a good human being and I want to become a CS in my life. That's all about me. Thank you, ma'am, for listening. Okay, okay. Very nice, very nice. See, the feedback is that you all three are very good, were very good to introduce yourself. You all are keeping, in mind about the feedback also. Especially, I want to say that to Harshita is that whatever feedback I have given to you, you have improved on it, right? Because in the last session I have observed lots of the negative point in you, but today I'm very much impressed that you are focusing on that point and you just improved yourself, right? About your movement of the body, about your eye contact, about the content, you all are very good. So okay, so now today I'm going to teach you about, I'm going to train you about the how to create an effective resume. Okay, so now I'm going to share my screen with you. Oh, now is it visible to all of you? Yes, ma'am. Okay, no problem. Okay, so oh shit, sorry, this is the next slide. Just a second, give me 2 minutes, sir. Give me 2 minutes. Smita, that is you. This is now, is it visible to all of you? Yes, 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 ma'am. ma'am. Okay, okay. Now, can you tell me why resume or curriculum vitae is necessary? Can anyone tell me why a resume is necessary for an interview? What is the need of resume? Because you all are, will appear in the interview. So, what is the need of resume? Yes, Miss And Richa, can you please? Yeah, yeah, Rahul, you want to say something? Yes, Rahul, tell me, Vijay. Yes. it interview in impress about to know what we are talking about the us and what we included in our resume. They try to understand
uh, the information we are putting in the resume are correct or not. Sometimes uh, we make resume from the cafe, etc., and Okay. they put the information according to them, and Okay. we have not read our resume sometimes, and we and that's it. No, no, no. I'm asking that why resume is necessary for an interview. Can anyone tell me what is the need of resume? If you all are already मतलब will appear in the interview, right? Personal interview में आप सभी लोग appear होते हो, तो resume की क्या जरूरत है? क्यों resume क्यों मांगते हैं कंपनी वाले? Reason क्या है? Mm, I think is a brief summary of a person by which you can assume about their personal and professional qualification, personal area of experience, their skills, their address, and what are the some details which are given in the resume by which you can easily brief the person by their category and categorize the person according their quality, their experience, their work. तो वो तो आपसे भी पूछा जा सकता है ना? Reason क्या है? वो तो आपसे भी बोला, आप भी तो जाके बताते ही हो, तो रीजन क्या है? यस हर्षिता, मैं पूछ रही हूँ रिज्यूमे, आप लोग ये बता रहे हो कि रिज्यूमे में क्या होता है, ठीक है? व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू आर गोइंग टू इंक्लूड इन द रिज्यूमे, यू आर सेइंग दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, बट आई एम आस्किंग, let me finish. I am asking what is the need of a resume? Why what is why it is necessary to create an resume for the interview? क्यों जरूरी है? क्या कोई ये बता सकता है? क्या जरूरत क्या है? भाई आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है? तो इंटरव्यू जब आप देने जा ही रहे हैं तो रिज्यूमे की क्या जरूरत है? बनाने की क्या जरूरत है? क्यों देते हैं आप लोग रिज्यूमे? वो तो पर्सनली आपको कॉल करके भी बुला सकते हैं कि भाई आज इंटरव्यू है, आप आ जाइए, तो रिज्यूमे देने की क्या जरूरत होती है? मैं ये पूछ रही हूँ, जरूरत क्या है? व्हाट इज द नीड ऑफ रिज्यूमे? यस राहुल। रिज्यूमे से कंपनी फिल्टर कर सकते हैं अपने एक्सपेक्टेशन को कि कैंडिडेट की जो भी एक्सपीरियंस और क्वालिटीज हैं वो हमारी एक्सपेक्टेशन या हमारा जो प्रोफाइल एक्सपेक्टेशन उससे मैच कर रहा है कि नहीं, अदरवाइज उनको कॉल करते हैं, अदरवाइज वो फिल्टर कर देते हैं. ओके, यस राहुल, डू यू वांट टू से समथिंग? And yes, ma'am, they can also contact in the future. In a future also, very good. Yes Harshita, do you want to say something? Yes, ma'am. Ma'am, resume is like a first impression. उन्हें shortlist करने के लिए resume is a first impression कि वो candidates को select करते हैं या नहीं. ठीक Depend है, on the resume. हाँ, very nice. It is very necessary for the screening process. Screening means when what is the requirement of the employer, right? So they can select you or they can reject you through your resume, because resume is a brief information of your personality, ठीक है, ऑफ योर सेल्फ, आपके बारे में पूरा ब्रीफ इंफॉर्मेशन उसमें होता है, अबाउट योर क्वालिफिकेशन, अबाउट योर एक्सपीरियंसेस, अबाउट योर इंटरेस्ट, राइट, about your academic background, about your family background. So they can select you or they can reject you according to their requirement of the job. ठीक है, जॉब की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो आपको सिलेक्ट भी कर सकते हैं और आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं. तो ये जो स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है, रिज्यूमे इज वेरी नेसेसरी फॉर दिस. So resume is your first screening selection procedure. ठीक है, अगर आपका रिज्यूमे सिलेक्ट नहीं हुआ तो आप ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाते हैं. बट इफ योर रिज्यूमे इज सिलेक्टेड फॉर द जॉब, सो योर फर्स्ट स्टेप ऑफ मूविंग अहेड टू गेट अ जॉब इज प्रोसीडेड. क्लियर? क्लियर एवरीवन? Yes or Yes, no? ma'am. Yes or no? Okay, okay, no Yes, problem. Okay, so now can anyone tell me? Okay, now have you heard the word of resume, curriculum vitae, and biodata? Yes, ma'am. You all have already heard these words, right? Curriculum vitae मतलब CV, resume और biodata. You all have heard these words? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
So can you tell me what is the difference between these terms, resume, curriculum vitae, and biodata? What are the difference between these? Yes, Harshita, can you tell me what is the Ma'am, in difference? Hmm. Yes, beta. ma'am, in resume, we can conclude all the things like personal and as well as academic qualification, but in biodata, we Hmm. can share only personal information. Okay, and what is above? What about curriculum vitae? I'm sorry, I don't know about the Oh, you difference don't know between. about it. Okay, no problem. Yes, Miss Richa, can you tell me what is the difference between curriculum vitae, resume, and biodata? Hello. Yes, Hello. ma'am. Yes, ma'am. Biodata is a personal detail of any person, and Okay, especially work in for marriage purpose. okay, And and there is only personal detail are given. And in okay, the CV and resume, your personal as well as your professional detail, like where work experience and mm, skills are given in the CV and resume. okay. And Yes, yes, please. resume is a more advanced term in which Mm, you can give your professional qualification, your professional work experience. okay, okay. Can you tell me what is the difference between resume, curriculum vitae, and biodata? Rahul, can you please unmute Yes, yourself and tell me what is the difference between curriculum vitae, resume, and biodata? Do you and have I any have no idea. Okay, you don't have any idea. Okay. Now, yes, Miss Richa and Miss Harshita, this question is for you. If you have to differentiate between curriculum vitae and resume, so what would be the difference in it? Exclude biodata term and now tell me what is the difference between curriculum vitae and resume. Can you tell me? Yes or no? What is the difference between curriculum CV and resume? What is the difference between both terms? Ma'am, Hmm. in when any fresher is when any fresher is going to share any information, then it is called a CV, and if we have experience, then it's like a resume, I think. Okay. Okay, okay. Yes, Miss Richa, can you tell me? I think exactly same. I think when you have any work experience, professional experience, then you have to give your resume, and you are a fresher, then this is called as a CV. Okay, okay. Thank you. Thank you, everyone. Now, I'm going to tell you what is the difference. See, in both in all terms, CV, curriculum vitae, and resume, your personality you will have to add about yourself. Okay? The difference is that in curriculum vitae, it is only applicable for fresher candidate, a person who doesn't have any kind of real job experience, right? Curriculum vitae. What is the meaning of curriculum, Rahul? Can you tell me what is the meaning of curriculum? Curriculum का क्या मतलब होता है? Can you tell me what is the meaning of curriculum? I don't know, man. Okay. Miss Richa, can you tell me what is the meaning of curriculum? Activities. What kind of activities? Cooking is included in it. Sorry. Cooking is included in it. No, no. No. Activities. I think educational qualification which are done by the you and other personal detail. Activity में other personal detail कहाँ से आ गया? हाँ? Activity is something you are doing it, right? Yes. तो other detail कहाँ से आ गया? Yes, Miss Harshita, can you tell me what is the meaning of curriculum? Ma'am, it's an स्कूल में activity. हाँ हाँ हाँ
like cultural and skill. I think अच्छा, skills and हाँ हाँ हाँ. exactly I don't know. अच्छा, को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर क्या होता है? सब लोग स्कूल तो गए हो ना, कॉलेज भी गए हो. करिकुलम, को करिकुलम एंड एक्स्ट्रा करिकुलम, क्या डिफरेंस है तीनों में? टेल मी, क्या डिफरेंस है तीनों में? को करिकुलम, करिकुलम एंड एक्स्ट्रा करिकुलम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टर्म्स? क्या डिफरेंस है? पढ़ाई शुरू कर दीजिए आप लोग, कम से कम अपने रिज्यूमे से रिलेटेड हर जो डिक्शन है, जो वर्ड्स हैं, ठीक है, टेक्निकल वर्ड्स हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एचआर कुछ भी पूछ सकता है. सी, इन पर्सनल इंटरव्यू देयर इज नॉट एनी कोर्स और नॉट एनी सिलेबस. इट इज अ वास्ट एरिया. जो इंटरव्यूअर का मन करेगा वो कुछ भी पूछ सकता है. तो आपको एटलीस्ट अपने रिज्यूमे में जो भी टर्म्स आप यूज कर रहे हैं, जो भी वर्ड आप यूज कर रहे हैं, उनकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए. ठीक है. सो इफ यू आर रिटन राइटिंग करिकुलम विटाए, सो करिकुलम विटाए का मतलब आपको पता होना चाहिए. तो जब करिकुलम का ही नहीं मतलब पता, तो आप क्या बताओगे? राइट. कोई आइडिया है करिकुलम, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर क्या होता है? नहीं पता. ओके. करिकुलम इज रिलेटेड टू योर सिलेबस, योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन. ठीक है, एक सिलेबस मिला है, उसको पढ़ के आप पास कर रहे हैं. को करिकुलर क्या होता है कि सिलेबस के अलावा, अपार्ट फ्रॉम सिलेबस, वॉट एवर यू आर यू नो, ऐसे एक्टिविटीज, जैसे आपको प्रोजेक्ट करना है, प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, या कुछ ऐसा एक्टिविटी जो आपके सिलेबस में है, जो कि पढ़ाई से हटके है, जैसे प्रोजेक्ट, आपकी समर ट्रेनिंग, आपकी फाइनल ट्रेनिंग. ठीक है, ये सारी आपकी को करिकुलर एक्टिविटी. एक्स्ट्रा करिकुलर क्या होती है? जैसे आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, या जैसे आपने कहा कल्चरल कमिटी है आपकी, आपका स्पोर्ट्स का एक्टिविटीज हो रही है, वो सब एक्स्ट्रा करिकुलर में आएगा. ठीक है. क्लियर एवरीवन? यस और नो? ओके. नाउ, Yes, ma'am. okay, now if we are discussing about curriculum vitae, so curriculum vitae is something for those person who have only academic kind of experience, and the fresher candidate has only academic information and their personal information. ठीक है. तो जो फ्रेशर कैंडिडेट होता है, उनके पास सिर्फ क्या होता है, क्या क्या ऐड कर सकते हैं? अपनी पर्सनल डिटेल ऐड कर सकते हैं और अपनी अकेडमिक डिटेल ऐड कर सकते हैं. तो इसलिए जब भी कोई फ्रेशर अपना रिज्यूमे बनाता है, तो उसकी हेडिंग होनी चाहिए करिकुलम विटाए. क्लियर है एवरीवन? And for resume is applicable for those person who have any kind of real working experience, whether it is related to 1 month or 13 year 14 years. अगर आपको एक हफ्ते या एक महीने का भी रियल वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो आपको रिज्यूमे हेडिंग, एज ए हेडिंग यूज करना चाहिए. क्लियर? क्लियर? यस और नो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, Yes, okay, ma'am. okay. So biodata is applicable for the matrimonial purpose. जो आजकल चल रहा है, करेंटली जो मार्केट में पॉपुलर है, वो हम बता रहे हैं आपको. बायोडेटा, यू शुड नॉट यूज बायोडेटा टर्म इन योर जॉब एप्लीकेशन. ठीक है. वैसे बहुत से लोग कर देते हैं, अक्सर जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए, या जो कोई थीसिस वगैरह सबमिट करता है जिसमें रिटर्न डॉक्यूमेंट जाता है, वहां पे लोग करते हैं. लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में बायोडेटा टर्म बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड होता है. तो जस्ट अवॉइड दिस टर्म बायोडेटा फॉर योर जॉब एप्लीकेशन. यू शुड ओनली यूज curriculum vitae and resume according to the criteria. If you are fresher one, you should use curriculum vitae. If you have any kind of work experience, you should use resume term. Clear everyone? Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay, very nice. Now, okay, now tell me what kind of element and structure you are going to add in your resume. What kind of content you are going to add in your resume? So one by one you will have to tell me what kind of content you are going to add in your resume. So first we will start with Rahul. Yes, Rahul, tell me. Yes, ma'am.
beta, tell me what kind of content you are going to add in your curriculum vitae, CV or in resume. क्या क्या ऐड करोगे उसमें? Ma'am, name, email ID, mobile number, and of course qualification Okay, and place okay, and extra activities. okay. And, And take your time. Okay, do remember it, and I will come in the next round. Yes, okay. Harshita, can you tell Yes, me? ma'am. Can you tell me? Yes, ma'am. In resume and CV, we should include our personal detail like name of the person and email ID or phone number. And in resume, we should not include personal details like family background and all. We should include our academic qualification as well as our work experience. That's it. Okay, okay. Yes, Miss Richa, can you tell me? Yes. First of all, we should include our personal detail like name and gender, email ID, contact number, and then the our educational qualification, and after that professional experience. If any have a professional experience, then it should be mentioned, and after Okay. that hobbies and other details. Okay, okay, very nice. Now, see, एलिमेंट से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी. ये जो रिज्यूमे होता है वो एक्चुअली देर आर थ्री काइंड ऑफ रिज्यूमे. फर्स्ट इज जस्ट अ सेकेंड, हाँ, फर्स्ट इज क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे और ट्रेडिशनल रिज्यूमे. सेकेंड इज फंक्शनल रिज्यूमे एंड द थर्ड वन इज फ्यूजन ऑफ बोथ और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. ठीक है. ट्रेडिशनल रिज्यूमे में आपका पूरा पर्सनल बैकग्राउंड होता है, जैसे जो कि करिकुलम विटाए में होता है, नहीं, एकेडमिक बैकग्राउंड, आपकी पर्सनल डिटेल होती है. दूसरा होता है फंक्शनल रिज्यूमे. फंक्शनल रिज्यूमे में आपका पूरा फंक्शनल, मतलब आप क्या काम करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव, व्हाट यू हैव डन इन योर वर्किंग पीरियड, from which company you are going to work with, how many times or how many what is the duration of the work, these kind of what was the roles and responsibility you are you know uh, contributing in the organization. So ये सारी चीजें हम अपने फंक्शनल रिज्यूमे में इंक्लूड करते हैं. बट जो लास्ट वन है फ्यूजन ऑफ रिज्यूमे या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, उसमें हम दोनों, मतलब अपनी पर्सनल डिटेल एज वेल एज आपकी फंक्शनल डिटेल दोनों को मेंशन करते हैं. एंड इन करंट पोजीशन, इन करंट एरा, यू विल हैव टू क्रिएट अ फ्यूजन ऑफ रिज्यूमे. मतलब आपको दोनों ट्रेडिशनल और फंक्शनल दोनों का कॉम्बिनेशन आप जब आप क्रिएट करेंगे अपना अपना रिज्यूमे, आपको फ्यूजन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ को क्रिएट करना है. ठीक है. तो अब जो हम एलिमेंट बात करेंगे वो दोनों के लिए होगा. ठीक है. नाउ the element and structure of resume is that first is your heading, जो कि आपको मैंने पहले बता दिया है, डिस्क्राइब कर दिया है कि रिज्यूमे लिखना है या करिकुलम विटाए लिखना है. ठीक है. वो आप क्लियर है कि आपका जो भी क्राइटेरिया है, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप सीवी लिखेंगे, करिकुलम विटाए लिखेंगे. अगर आप इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, सो यू विल हैव टू राइट रिज्यूमे टर्म. ठीक है. द सेकेंड और हेडिंग में ही आपका थोड़ा बहुत पर्सनल डिटेल लाइक योर जो है क्या नाम है हेडिंग, वो हम अभी डिटेल में बताएंगे. सेकंड वुड बी योर पोजीशन शॉर्ट, थर्ड वुड बी योर करियर ऑब्जेक्टिव, फोर्थ इज वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, project detail, work seminar and conferences, special skills, achievements or awards, achievement activities and interest, references, personal details, declaration and date, place and full name. So if we are talking about heading, so in heading you will have to add these information which is related to your name. Of course you will have you add your name, your postal address, correspondence address, and contact number, mobile number,
email address, if you have email address, of course you I think you have email ID, so you do mention it. Fax number, if you have fax number, so do mention it. And also you will have to paste your passport size formal photo. ठीक है, आपको फॉर्मल फोटो एक क्लिक करा के यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज अपने रिज्यूमे में पेस्ट करना है, लाइक दिस, जैसा कि आपने ऑलरेडी ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना। आपको यहाँ पे नाम लिखना है और अपने ये सारे इंफॉर्मेशन लिखने हैं। इसके जस्ट सामने आपको यू विल हैव टू पेस्ट योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लाइक दिस। क्लियर एवरीवन? एनी Yes, क्वेरी? ma'am. ओके, No, वेरी ma'am. नाइस। ओके, shall I move further? Yes, Okay. ma'am. Yes. Okay. So the next is your position sort. Can anyone tell me what is position sort? Can anyone tell me what is what kind of information included in position sort? Yes. Rahul? Position sort. What is position sort? What kind of information included in it? Okay, Miss Arshita, do you know it? And in position short, we should include ki real position ki what the person मतलब क्या कर रहा है वो, what he is doing, that is mentioned. Like now I'm in now I'm doing CS, so I have mentioned ki I will mention it ki I'm a student of CS professional. That, Okay, Miss Richa, can you tell me? No idea. No idea. Okay. See, no, Harshita, this is not a position sort. Position sort is something on what about for what post you are going to apply. ठीक है, जैसे for example, if you are going to apply for the post of human resource manager, right? So you will have to add position in position sort section that I am going to apply it for human resource management. अगर आप CS के हैं या जो भी आपकी पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं, तो वो आपका पोजीशन सॉर्ट होता है, ठीक है। सो दैट द इंटरव्यूअर कैन आइडेंटिफाई कि आप कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और ये तभी आप लिखेंगे जबकि आपको, जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर अक्सर होता क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ना एक टाइम पर साइमल्टेनियसली वो कई सारे जॉब निकालते हैं, जैसे मार्केटिंग की भी पोस्ट निकाल दी, ठीक है, और HR की भी पोस्ट निकाल दी, फिनेंस की भी पोस्ट निकाल दी। अब हाउ कैन दे आइडेंटिफाई दैट फॉर विच पोस्ट यू आर गोइंग टू अप्लाई? So if you are giving your resume in response of any kind of advertisement of any organization, ठीक है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने अगर जॉब निकाली है, ठीक है, तो आपको तब लिखना है कि आप किस जॉब के लिए, तब ये जो पोजीशन सॉर्ट का क्राइटेरिया है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दोज who are going to apply for the job in response of any advertisement. ठीक है, बात समझ रहे हो आप लोग? किसी एडवर्टीजमेंट के रिस्पॉन्स में अगर आप अपनी रिज्यूमे को भेज रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं पोस्ट के लिए, तो आप पोजीशन सॉर्ट डालेंगे। लेकिन अगर डायरेक्ट आप जा रहे हो तो उसमें जरूरत नहीं होती है कि आप अपना ये पोजीशन सॉर्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है, तब आप अपना सिर्फ क्राइटेरिया लिखेंगे। सी देयर इज अ नोट इन एन अनसॉलिसिटेड, सॉलिसिटेड और अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन पता है आप लोगों को क्या होता है? Otherwise, I am going to describe you. Do you know what is solicited application? Describe. Okay. See, solicited application is that when the organization give an advertisement of their vacancies. ठीक है? So that kind of job vacancy is known as solicited application job vacancy। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी तरफ से निकाला, जैसे मेरा इंस्टीट्यूट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, इंक्रीज नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। अब मुझे जरूरत है कि मैं कंप्यूटर के टीचर को भी चाह रही हूँ, ठीक है, वैकेंसी निकाल रही हूँ कंप्यूटर के टीचर के लिए, मुझे मार्केटिंग के टीचर की वैकेंसी है, मुझे HR के टीचर की वैकेंसी है, और मैंने एडवर्टीजमेंट निकाला है कि इन तीनों सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कीजिए। सो आप तीनों को अप्लाई करना है मेरे पास, ठीक है।
तो राहुल को क्या करना है, मान लीजिए इनको सिर्फ मार्केटिंग के लिए अप्लाई करना है, तो राहुल विल एड इन पोजीशंस और दैट ही इज गोइंग टू अप्लाई फॉर मार्केटिंग टीचर, राइट? क्लियर एवरीवन? और Yes. आपको मान लो हर्षिता को कंप्यूटर के लिए अप्लाई करना है, तो आपको अपने पोजीशन शॉर्ट में कंप्यूटर सब्जेक्ट ऐड करना होगा। अगर एचआर के लिए रिचा जी को अप्लाई करना है, तो वो एचआर का नाम लिखेंगी पोजीशन शॉर्ट में, ठीक है? तो आप ये पोजीशन शॉर्ट का क्राइटेरिया तभी एप्लीकेबल होगा जब आप इन रिस्पॉन्स ऑफ एडवर्टीजमेंट अपने जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर? ये समझ में आ रहा है? और इस टाइप के एप्लीकेशन को सॉलिसिटेड एप्लीकेशन कहा जाता है। अनसॉलिसिटेड का मतलब है कि अब आपको पता है मेरा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे वैकेंसीज आती रहती है, आपको नहीं पता है कि इस टाइम पे वैकेंसी है या नहीं है, बट आप फिर भी मेरे पास मतलब यू नो फॉर अ फ्यूचर बेनिफिट आप मेरे पास अपना एप्लीकेशन दे रहे हो कि मैम प्लीज आपके पास मैं मार्केटिंग का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और आप मुझे जो है क्या नाम है ये मेरा रिज्यूमे है और अगर वैकेंसी निकले तो आप मुझे बुला लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा। तो इस टाइप का जब आप एप्लीकेशन देते हो तो दैट इज नोन एज अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन। क्लियर? So position sort will be position sort section is only applicable for solicited application. It is not applicable for unsolicited application. Clear? Any Yes. question? Any confusion? No, ma'am. Okay. So the next criteria is job career objective. See, this is very important because every interviewer are going to ask about your career objective because it shows your dedication or your vision. आप अपने करियर को लेके कितना आपका विजन क्या है, ये आपके करियर ऑब्जेक्टिव से इंडिकेट होता है, राइट? So you will have to very careful or you will have to very focus on to create your career objective. ठीक है? It should be very precise as well as indicate your vision as well as indicate your dedication, your desperateness to do to get job. ठीक है? ये सारी चीजें आपकी करियर ऑब्जेक्टिव से शो होना चाहिए। तो आपका करियर ऑब्जेक्टिव इस टाइप से क्रिएट करिएगा so that interviewer को लगे कि yes he is a very ambitious person और his vision is very clear about their career, तो वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस होगा। ठीक है? तो इसके लिए आपको जो ध्यान रखना है, एक चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जब जो भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केटिंग की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका करियर ऑब्जेक्टिव जो है वो मार्केटिंग से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका करियर ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर साइंस की तरफ जाने का है तो मार्केटिंग की जॉब के लिए कोई मतलब ही नहीं बनता आपको इंटरव्यू देने का, राइट? तो हमेशा जो आपकी वैकेंसी है उसकी रिक्वायरमेंट को ध्यान रखते हुए आपका करियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आपकी स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स आपकी पर्सनालिटी को शो करे, मतलब आपके विजन को शो करे, वो करियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज कि बिल्कुल एरोगेंट मतलब बहुत बड़े बड़े क्लेम मत कर दीजिए कि मैं तो जो है ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, और जब करने की बारी आए तो आपसे कुछ किया ही ना जाए। तो बहुत ही मॉडरेट आपकी जो फ्रेजेस होंगे, जो लाइंस होंगे, वो बहुत ही मॉडरेट सेक्शन में होंगे। मॉडरेट सेक्शन मतलब ना बहुत लो बनाइए कि बिल्कुल आप ग्रीडी हैं, इस टाइप का भी मत बनाइए, ना बहुत ज्यादा हाई एम्बिशन बनाइए, बिल्कुल मॉडरेट रखिए। ठीक है? मीडियम होना चाहिए आपका फ्रेजिंग। नेक्स्ट इज योर वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस में आपको ऑफ कोर्स वर्क एक्सपीरियंस इज रिलेटेड टू योर रियल वर्क जॉब एक्सपीरियंस। इसको एक चीज से कंफ्यूज मत होइएगा। अक्सर क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट डिटेल आप लोग बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल राहुल इज डूइंग MBA, so he must be doing some project work, right Rahul? Have you done your summer training? Yes ma'am. See, समर ट्रेनिंग में भी या कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है, जब आपको ट्रेनिंग करना पड़ता है एकेडमिक में, तो अक्सर क्या होता है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम तो कंपनी में जॉब कर रहे हैं। बट किसी भी टाइप की ट्रेनिंग, किसी भी टाइप की जो समर ट्रेनिंग, फाइनल ट्रेनिंग जो कि आपके सब्जेक्ट के लिए होता है, मतलब आपके कोर्स के अंदर होता है, जैसे MBA के लिए, BTech के लिए, जो भी आप प्रोफेशनल कोर्स करते हो, देयर इज सम कंपलसरी प्रोजेक्ट ट्रेनिंग
is required, right? So these kind of training is not included in your work experience. ठीक है, it is included in your project detail. तो डोंट गेट कंफ्यूज रिगार्डिंग दिस कि हमने तो कंपनी में जॉब किया है और ये हमारे वर्क एक्सपीरियंस में होगा. नो, दिस इज ओनली रिलेटेड टू योर ट्रेनिंग प्रोसीजर, राइट? So if you are mentioning your work experience, it is only related to your real work experience when you are hired by some company and you are getting some salary or stipend. Clear? So ये आपको डिफरेंस होना चाहिए कि जब आप सैलरी पाते हो वो आपका रियल वर्क एक्सपीरियंस होता है और आप कंपनी की तरफ से एज ए पेरोल हायर किए जाते हो. ठीक है, और आपको यू विल हैव टू ऐड दिस काइंड ऑफ information in your work experience like your past employer, your employer name, जो आपके employer name जो organization का वो name होता है वो आपको include करना है. पीरियड ऑफ वर्किंग, आप कितने साल, कितने मंथ, कितने दिन के लिए वहां पे काम किए हैं, यू विल हैव टू ऐड these section. You will have to highlight the job responsibility as well. जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा जैसे आपने क्या क्या काम किया है. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप टीचर है, मैं आपको टीचर का दे रही हूँ, या आप मार्केटिंग मैनेजर हैं, राइट? सो मार्केटिंग मैनेजर में आपने कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी अडॉप्ट किया है, मतलब आपने कंट्रीब्यूट किया है, लाइक क्लाइंट हैंडलिंग किया है, आपने डॉक्यूमेंटेशन पे वर्क किया है, आपने एडवर्टीजमेंट पे वर्क किया, मार्केटिंग पे वर्क किया है, ठीक है, आपने क्लाइंट सर्वे किया है, आपने आफ्टर सेल सर्विस दिया है. ये सारी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती है, जो काम होता है, आपको अपना पूरा काम इसमें लिखना है. ठीक है, एप्लीकेंट्स रोल्स एंड इन द ऑर्गेनाइजेशन, आपका रोल क्या क्या होता है वो आपको बताना है. जैसे आप कोऑर्डिनेटर बने हैं या आप जो है और भी अपार्ट फ्रॉम मैनेजर आपके कौन कौन से रोल है. आपने किसी बहुत सारे सेल्स बनते हैं, सेल इन द सेंस जैसे प्लेसमेंट सेल होता है, जैसे वुमेन सेल होता है, राइट सेल्स होते हैं. ये सारी चीजें जो होती हैं, अगर आप इन सब में भी अपना कोई वर्क कंट्रीब्यूशन दिए तो उस रोल्स को भी आप लिखिए यहाँ पे. और आप ये भी दिखाइएगा वर्क एक्सपीरियंस में कि आप कितने इंटरेक्टिव थे, कितने इंथुजियाज्म के साथ आप चीजों को सीखने के लिए रेडी टू लर्न समथिंग होता है, रेडी टू इंटरेक्ट विद समवन होता है. तो ये सारी जो क्वालिटीज होता है आपको इसमें मेंशन करना होगा. सो टिल नाउ डू यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी अभी तक जो पढ़ाया है? कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है? अभी पूछ लीजिए अगर कोई क्वेरी है, जो भी सेक्शन अभी तक हमने पढ़ाए हैं. यस और नो? मैम जैसे हेडिंग में कोई अगर किसी ने इंटर्नशिप कर रखी है तो उस पे हेडिंग पे क्या रखेंगे? अभी बताएंगे. इंटर्नशिप के लिए अभी आगे आ रहा है, अभी तो हमने स्टार्ट जो अभी तक पढ़ाया उसमें है. उसमें कोई क्वेरी है? नो मैम. Audible to all of you? Yes, hello. Yes ma'am. Am I audible now? Yes, ma'am. Hello. Yes, ma'am. Hello. Okay. Hello. Hello. Now am I audible? Yes. Am I audible to all of you? Okay. Yes. Okay. Very nice. Rahul, are you there? Yes, Rahul. ma'am. Okay. Now am I audible? Yes, ma'am. Okay. Very nice. So, 1 second. Okay. So the next thing is your career objective तो हो गया था. Oh, sorry. Yes. The next thing is your educational qualification. So in educational qualification, we are going to categorize into 2 sections. First is your professional qualification and the second one is your academic qualification. So can anyone tell me what is the difference between professional qualification and academic qualification? Yes. Yes. If we have a special Huh. degree, then we can put in a professional qualification, and Okay. academic qualification we can put the information from the 10th to graduation. 10 to graduation. Okay, very nice. Yes, Miss Harshita.
Can you tell me what is the difference between professional qualification and academic qualification? Yes, ma'am. In professional qualification, we should include the professional degree, about the professional degree, and in academic qualification, we should include the schooling, like 10th, 12th, and graduation too. Okay, and what is professional qualification? कैसे categorize करोगे कि which degree is a professional qualification and which degree is a academic qualification? How can you categorize it? Can anyone tell me? How can you categorize professional, which degree is professional degree and which degree is, academic degree? Yes, Miss Richa, can you tell me? As professional, in professional qualification, you are trained and you are professional. You are trained by for a specific area, like engineer, like doctor, and like management, and you are only trained for a particular area. And the other what is the other? There is a Professional academic qualification. academic Academic qualification is qualification. up to Yes, 12, up to 12th up to and simple 12. graduation, which is Simple necessary for all. graduation. Simple Okay. graduation. Okay. Okay. Rahul, do you want to say something more? And professional qualifications like we are especially studying for special subject like Like, we are my I am studying for the management only, not okay. other things. Mm-hmm. Okay. See, you cannot say like this a special subject is included in the आप लोगों के बोलने से ऐसा लग रहा है कि that only professional subject is a special thing and the rest one is not a special thing. No, every subject is special, right? In their own criteria, in their own area. See, don't use such kind of words to every to particular subject, right? Every subject is special, but here we I just want to know what is professional and what is academic. The difference between these term is that in professional qualification we are only going to study about some kind of profession. Clear? हम किसी प्रोफेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो? तो मतलब प्रोफेशनल डिग्री वो डिग्री होती है जिसमें हमें एक तरह की ट्रेनिंग मिलती है कि उस पर्टिकुलर जॉब को पाने के लिए. फॉर एग्जांपल राहुल इज डूइंग यू नो सॉरी एमबीए, राइट? सो एमबीए इज रिलेटेड टू सम बिजनेस काइंड ऑफ स्टडीज. उसमें आप बिजनेस की स्टडीज कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको क्या दे रहा है? एक बिजनेस का प्रोफेशन दिखा रहा है, वो समझा रहा है कि आप अगर बिजनेस में जाएंगे, किसी भी टाइप के बिजनेस में जाएंगे तो आपको कैसे बिहेव करना है, आपको कैसे बातें करनी है, आपको कैसे रहना है, कैसे एडजस्ट करना है, राइट? तो ये जो तरीका होता है, मतलब ये पढ़ाई जो होती है, ये बिजनेस की पढ़ाई होती है. इसी तरह से इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बीटेक, बीटेक इज सम काइंड ऑफ दे आर गिविंग द ट्रेनिंग रिलेटेड टू द इंजीनियरिंग फील्ड. ठीक है? अब इंजीनियरिंग में भी जैसे मार्केटिंग, सॉरी एमबीए में जैसे अपने फील्ड होते हैं, बिजनेस के मार्केटिंग फील्ड है, एचआर फील्ड है, फाइनेंस फील्ड है, उनके अपने बिजनेस होते हैं, ठीक है? उसी तरह से इंजीनियरिंग में भी कई क्राइटेरिया होती है, तो वो उनकी अपनी स्टडीज होती है. बट वो बीटेक क्या दे रहा है? इंजीनियर्स बनाने की तैयारी कर रहा है, वो उनका प्रोफेशन है, राइट? उसी तरह से आप बीआर्क करते हैं, वहां पे आर्किटेक्चर की होती है. लेकिन एकेडमिक क्या है? एकेडमिक में सिर्फ स्कूलिंग नहीं होती है. एकेडमिक का मतलब होता है एक ऐसी स्टडी जिसमें सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, किसी प्रोफेशन जरूरी नहीं है. ऑब्वियसली आप एकेडमिक में जैसे बीए कर रहे हैं, ठीक है? बीए में क्या हो रहा है? आप हिंदी पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो. ये आपको पर्टिकुलर किसी जॉब की ट्रेनिंग नहीं दे रहा है, ये आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट की पढ़ाई बता रहा है, नॉलेज बता रहा है, ठीक है? लेकिन अगर आप बीएड कर रहे हो, बीएड क्या होता है? टीचर्स ट्रेनिंग होती है, वहां पे आपको पूरा टीचर्स कैसे रहते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, तो वो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं. तो दैट इज द डिफरेंस. अब आपको नाउ यू विल हैव टू कैटेगराइज योर डिग्री अकॉर्डिंग दीज क्राइटेरिया. अगर आप कोई जैसे आप सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हो, डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो, तो वो भी पर्टिकुलर किसी, मान लीजिए आपने ओ लेवल ए लेवल किया कंप्यूटर साइंस में, तो वो क्या हो रहा है? वो आपको कंप्यूटर की पढ़ाई सिखा रहा है, आपको कंप्यूटर की जॉब दिलाएगा, ठीक है? तो ऐसा कोई सब्जेक्ट जो आपको किसी पर्टिकुलर जॉब से स्टडी कराता है, ट्रेनिंग दिलाता है, वो आपका प्रोफेशनल स्टडी होता है. और वो सब्जेक्ट जो आपको सिर्फ नॉलेज दे रहा है, किसी प्रोफेशन के बारे में नहीं बता रहा है,
वो आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन होता है। इसमें आपका ग्रेजुएशन भी होता है, इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, दोनों में होता है। जैसे एमए आप कर रहे हो, बीए कर रहे हो, ये आपको सिर्फ नॉलेज दे रहा है, तो ये आपकी एकेडमिक डिग्री है। अगर आप कोई ट्रेनिंग वैसी कर रहे हो, बीटेक, एमबीए, बीआर्क, ठीक है, बीबीए, एमटेक, इस टाइप की कोर्सेज करते हो, वो आपका प्रोफेशनल डिग्री होता है। तो नाउ यू आर क्लियर, ऑल ऑफ यू, अब Yes, क्लियर है कि क्या डिफरेंस है? Yes, ma'am. So now the one thing you will have to focus that your degree, you should mention your degree in a reverse chronological order. Chronological का क्या मतलब होता है? 1 2 3 4। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग 2020 में हैं, ठीक है, तो अगर हम 2010 से इंक्लूड करें तो क्रोनोलॉजिकल क्या है? 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, टिल 20 तक, 16 17 18 19 20। बट आपको क्या करना है? अब आपने जैसे 2010 में मान लीजिए आपने हाई स्कूल किया है या इंटर किया है या बीए किया है, जो भी आपकी डिग्री है, तो क्रोनोलॉजिकल क्या होगा? 2010 आपका क्रोनोलॉजिकल में है, आपको इस तरह लिखना रहेगा। लेकिन आपको क्या, जो आजकल पॉपुलर क्या है, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल, मतलब आपको 2020 से स्टार्ट करना है और पूरा 10 तक जाना है। मतलब आपकी नई डिग्री, सबसे करेंट डिग्री क्या है? जैसे आपने रिसेंटली अभी जैसे मान लो राहुल जी एमबीए कर रहे हैं, ठीक है, तो राहुल को क्या लिखना है सबसे पहले कि ही इज परसुइंग एमबीए। परसुइंग का मतलब अभी आप, यू आर नॉट कंप्लीटेड, you have not completed your MBA, so you are written, you have to write I am pursuing MBA, right, currently doing MBA, ये इस टाइप के phrases आपको use करने हैं। So now you are at first you're currently doing, देन उसके पहले आपने क्या किया? पहले आपने ऑब्वियसली ग्रेजुएशन किया होगा, उसके पहले आपने इंटरमीडिएट किया होगा, उसके पहले आपने क्या कहते हैं, हाई स्कूल किया होगा। सो टिल हाई स्कूल तक यू विल हैव टू ऐड ओनली, ठीक है, उसके पहले की स्टडीज आपको नहीं ऐड करनी है। क्लियर? क्लियर है सबको? yes, Yes or ma'am. no? Yes, ma'am. Okay, very Yes, nice. So you will have to, what kind of content you will have to in this section is that your course name, आपने कौन सा कोर्स किया, जैसे MBA, BA, BTech, जो भी कोर्स नेम है आपको वो लिखना है, आपके इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, बोर्ड और यूनिवर्सिटी यू विल हैव टू नेम, कि कौन सी बोर्ड आपने यूज किया है और कौन सा यूनिवर्सिटी आपका है, ठीक है, उसका नाम लिखना है, ईयर ऑफ पासिंग लिखना है, परसेंटेज यू विल हैव टू ऐड, एंड मेक श्योर इफ यू हैव गुड परसेंटेज, ठीक है, then you will have to add on it, otherwise just exclude it, ठीक है, if you got 40%, 45%, 50%, don't mention it. If you have 60 above 60, just do mention it. Clear? क्या मेंशन करना है, परसेंटेज कब मेंशन करना है, सो इट्स अप टू योर मार्क्स। नेक्स्ट इज योर प्रोजेक्ट डिटेल। सी राहुल, now your section will come, whatever you have asked to me previously, you will have to add this in this criteria about your summer training, about your final training project, ठीक है। सो प्रोजेक्ट डिटेल, जो भी आप कोर्सेज में प्रोजेक्ट करते हैं, डू मेंशन इट, and for this you will have to add this section, योर प्रोजेक्ट टाइटल। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, उसका कोई टाइटल रखते होंगे आप, ठीक है, सो उस टाइटल को एचआर से है, मार्केटिंग से है, किस मार्केटिंग के किस टॉपिक पे है, एचआर के किस टॉपिक पे है, ठीक है, अगर आप टीचिंग में कोई प्रोजेक्ट बना रही हैं तो किस टॉपिक पे आपने प्रोजेक्ट बनाया है, हाँ ठीक है, उसको टाइटल को लिखना है, किस ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है, किस इंस्टीट्यूशन में आपने काम किया है, उस इंस्टीट्यूशन का नाम लिखिए, किस ईयर में आपने वो प्रोजेक्ट किया है, वो ईयर लिखिए, ड्यूरेशन ऑफ वर्क का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एमबीए में 15 डेज, 2 वीक्स या 2 मंथ्स का होता है, ठीक है, तो वो ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, कितने दिन का आपने किया है, कितने मंथ्स का आपने किया है, यू विल हैव टू ऐड द ड्यूरेशन ऑफ इट। ब्रीफ डिटेल अबाउट द प्रोजेक्ट, आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया, किस पर आपने रिसर्च किया, क्या रिसर्च किया और आपकी फाइंडिंग्स क्या हुई, ये सारी थोड़ी सी ब्रीफ डिटेल आपको प्रोजेक्ट डिटेल में मेंशन करना है। नेक्स्ट इज योर वर्क, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस। क्या किसी ने अटेंड किया? व्हाट इज इट? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज इट? यस प्लीज, what is workshop, seminar and conferences? Have you attended any workshop, seminar and conferences? कभी अटेंड किया है, कभी सुना है, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, ऑर्गेनाइजेशन में सुना है? Yes, ma'am.
सी जितने भी प्रोफेशनल क्वालिफाइड हैं, जैसे राहुल आप हैं, हर्षिता हैं, ऋचा जी, आप लोग अगर वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार आप लोगों को पता चलते हैं तो प्लीज अटेंड करिए. इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर योर रिज्यूमे. इससे आपकी एक्टिवनेस शो होती है, आप कितने डेडिकेशन से के साथ अपने एरिया में काम कर रहे हैं, कितना ज्यादा आप नई नई चीजें सीखना चाह रहे हैं. ये चीजें इन्हीं सब चीजों से शो होती हैं कि आपने वर्कशॉप अटेंड किया. इट मींस दैट यू आर अ वेरी यू नो वेरी एक्टिव पर्सन. आपको पता है कि क्या क्या चीजें, आपको चीजें अपने एरिया के बारे में नॉलेज गेन करने के इंटरेस्ट है. तो ये सारी चीजें आपको पता चलती है. बहुत से गूगल साइट होते हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं. बहुत सारे नेशनल कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, आपको पता चले. प्लीज आप उसे अटेंड करिए. इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू गेटिंग अ जॉब, like, so understand. So please do attend it, and you will have to mention this kind of information in this section: the title or topic of a workshop, seminar and conferences, date of it, किस दिन आपने अटेंड किया है, सिटी किस शहर में आपने अटेंड किया है, किस इंस्टीट्यूट ने ऑर्गेनाइज किया था ये ऑर्गेनाइजेशन का या इंस्टीट्यूट का नाम लिखिए जिसने ऑर्गेनाइज किया है ये वर्कशॉप, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पब्लिकेशन नेम जरूर करिए. जब भी कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह होता है तो उनका किसी ना किसी पब्लिकेशन से टाई अप होता है, बिकॉज कॉन्फ्रेंसेस की जो फाइंडिंग्स होती है, जो थीसिस होते हैं, जो पेपर सबमिट होता है, वो किसी पब्लिकेशन के थ्रू पब्लिश किया जाता है. तो अगर आपको पता चल रहा है कि उस पब्लिकेशन का नाम लिखिए, आईएसएन नंबर होता है उसको मेंशन करिए. आईएसएन नंबर ही आपकी ऑथेंटिसिटी ऑथेंटिसिटी बताती है कि यस यू आर डूइंग रियल वर्कशॉप और सॉरी कॉन्फ्रेंसेस. ठीक है, तो ये चीजें आपको उसमें मेंशन करनी है. नेक्स्ट इज योर स्पेशल स्किल. व्हाट इज स्पेशल स्किल? कैन एनीवन टेल मी? Can anyone tell me what is a special skill? Yes, please tell me. आज खाना नहीं खाए हो क्या आप लोग? I think special personality is like team management. Okay. Okay, okay, yes. And और कौन कौन से होते हैं? Yes, leadership Harshita. quality. Leadership quality. Okay. Yes, Harshita. Can you tell me what is a special skill of your? I don't know. Okay, you don't know. Yes, Rahul. What is a special skill? I'm like a coordinator and leadership skill also. Okay, okay, okay. No problem. See, special skill is your special aptitude or special talent. ठीक है, आप किस एरिया में आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं. सो दैट इज नोन एज योर स्पेशल स्किल. का क्या मतलब होता है? स्किल का मतलब होता है किसी काम को बहुत अच्छे तरीके से करना. ठीक है, तो आप ऑब्वियसली हर काम को आप अच्छे से कर रहे हो, बट किसी कुछ पर्टिकुलर एरिया है जिसमें आप बहुत ही स्पेशल स्किल है आपकी. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा स्पेशल स्किल मेरी टीचिंग हुई. ठीक है, बिकॉज मैं चीजों को, बातों को अच्छे से सामने रख पाती हूँ. या मेरा इंग्लिश लैंग्वेज है मेरी स्किल. मैं अपने आप को इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेट, अपने मैसेज को अच्छे से कम्युनिकेट कर पाती हूँ. ठीक है, या मैं कंप्यूटर ऑपरेट अच्छे से कर पाती हूँ. ठीक है, तो ये मेरी स्पेशल स्किल है. राइट, सो यू विल हैव टू फाइंड योर स्पेशल स्किल एंड यू नो अबाउट योर सेल्फ वेल. ठीक है, सो द नेक्स्ट थिंग इज, जैसे फॉर एग्जाम्पल, और एक चीज, एक बात ध्यान रखिएगा, वेन एवर यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, your special skill should be according to the targeted job. So you will have to sometimes आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, अपने रिज्यूमे को हमेशा अपडेट करते हुए चलना है. जैसे फॉर एग्जांपल आपने आज किसी कंपनी में इंटरव्यू दिया, उनकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, तो आपको उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने रिज्यूमे को अपडेट करना है. ठीक है, फिर आपने कभी 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद फिर आपने किसी और कंपनी में स्विच करना चाहा, इंटरव्यू दिया, तो फिर आप अपने रिज्यूमे को अच्छे से अपडेट करिए.
जो भी नए स्पेशल स्किल आए हैं, नए अचीवमेंट है, नई करियर ऑब्जेक्टिव। ऑब्वियसली जब आप फ्रेशर हैं तो आपकी करियर ऑब्जेक्टिव अलग होती है, जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपकी करियर ऑब्जेक्टिव नई हो जाती है। तो आपको उस तरह से हमेशा टाइम टू टाइम अपने रिज्यूमे को अपडेट करते चलना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए स्पेशल स्किल को जरूर अपडेट करिएगा। और इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, आपको अगर कंप्यूटर चलाना आता है तो उसमें क्या क्या है, आपकी टेक्निकल राइटिंग है अच्छी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से करना है। और कल हमने बताया है आपको फ्रेज क्या क्या यूज करना है स्पेशल स्किल के लिए। नाउ your achievement and award, this is also very important because it shows your efficiency of work, right? If you are gaining some if you are getting any award, if you are gaining some achievement like promotion or increment, ठीक है, इस टाइप के आपके अचीवमेंट्स हो रहे हैं, कोई अप्लॉज मिल रहा है, कोई आपको उपाधि मिली है, उपाधि इन द सेंस कोई आपको स्पेशल नेम मिल रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, सो ये आपको क्या होगा, स्पेशल पोजीशन मिल रहा है, तो ये आपका जो है क्या नाम है, इफिशियंसी ऑफ वर्क डिनोट्स करता है। तो इसको जरूर मेंशन करिएगा, क्योंकि ये आपको एक अचीवर के काइंड ऑफ अचीवर आपको रिप्रेजेंट करता है इंटरव्यूअर के सामने, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये सेक्शन जरूर आपको मेंशन करना है, किसी भी हालत में इसको एक्सक्लूड नहीं करना है। नेक्स्ट वुड बी योर एक्टिविटीज एंड इंटरेस्ट। इट इज ऑफ कोर्स जो एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर, प्रोफेशनल एक्टिविटीज हैं, हॉबीज एंड इंटरेस्ट है, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके ऑर्गेनाइजेशन, या जैसे मान लीजिए आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, राहुल एंड हर्षिता, आपने कॉलेज में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, लाइक आपने फ्रेशर पार्टी में पार्टिसिपेट किया है ऑर्गेनाइज करने में, या फिर आपने फेयरवेल दिया है अपने सीनियर्स को, आपने टीचर्स पार्टी ऑर्गेनाइज की है, या आपने कोई प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइज किया है अपने क्लासमेट के साथ। तो ये क्या होता है, ये एक करिकुलर, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर या अलग से कोई इवेंट, ये आपको आपका इंटरेस्ट और एक्टिविटी शो करता है। तो उसमें आपको बताना चाहिए कि आपने कैसे इसको ऑर्गेनाइज किया, आपका क्या टाइम मैनेजमेंट था, क्या टीम वर्क था, ये सारी चीजें इसमें, आपकी हॉबीज क्या है, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऋचा जी, आप टीचर हैं, तो आपने जैसे कॉलेज में किसी फंक्शन को, जैसे मान लीजिए चिल्ड्रन डे है, या किसी 26 जनवरी आ रहा है, 15 अगस्त है, इसमें आपने कोई कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, किसी अपने स्टूडेंट, अपने क्लास स्टूडेंट को कुछ प्रेजेंट करने को दिया है, तो ये सारी चीजें आपकी एक्टिविटीज, इंटरेस्ट और हॉबीज में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इंक्लूड होगी। क्लियर एवरीवन? यस और नो? Yes, ma'am. Okay, any confusion? Okay. No. So this criteria reflects your leadership quality, your initiative nature का मतलब है कि अगर आप अपने काम के अलावा कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, मतलब आप बहुत ही एक्टिव पर्सन है, ठीक है, आपको कोई काम लेने में बुरा नहीं लगता, आप फटाफट आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि आप अपने इस काम के साथ साथ अदर काम भी करेंगे। तो आजकल ऑर्गेनाइजेशन को मल्टी टैलेंटेड पर्सन चाहिए होता है, जो कि उनके हर एरिया में काम कर दे, ठीक है। तो ये इस टाइप के नेचर को बहुत ही ज्यादा फोकस किया जाता है इंटरव्यू में सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज रेफरेंसेस। सी व्हाट इज रेफरेंसेस अकॉर्डिंग टू यू? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज रेफरेंसेस? प्लीज टेल मी व्हाट इज रेफरेंसेस। Rahul, can you tell me what do you understand by Hello. references? Yes. Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Please tell me, Rahul, what is references? References is like which person helps to you getting a job. Okay, like Like as your professor okay, and your HR. okay, very nice. Yes, see, I think मैं आप लोगों का कुछ ज्यादा ही टाइम ले रही हूँ, तो मैं जल्दी रिज्यूमे कंप्लीट करती हूँ। See, references is something a person who is taking your responsibility,
योर ऑथेंटिस टेकिंग ऑथेंटिसिटी ऑफ योर्स, ठीक है। मतलब एक पर्सन जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि यस ही इज अ वेरी जेन्यून पर्सन, you are going to hire this person, and if any kind of negative attitude shown by him or her, I will take a guarantee, ठीक है। तो this type of person is अक्सर क्या होता है कि जो अच्छे renowned organization होते हैं वो कुछ पर्सन के नाम चाहते हैं जो कि आपको आपकी वैलिडिटी को प्रूव कर सके, आपकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव कर सके, ठीक है। तो रेफरेंसेस में उन टाइप इस टाइप के पर्सन को आपको ऐड करना होता है। और इसके लिए आपको जो ऐड कर सकते हैं, लाइक आपके सीनियर कलीग हो, आपके टीचर हो गए, आपके बैचमेट्स हो गए, आपके पास्ट एम्प्लॉयर हो गए, कोई भी एमिनेंट पर्सन जो कि कोई अच्छी अच्छे पोजीशन पे काम कर रहा हो, तो उनको आप ऐड कर सकते हैं। बट मेक श्योर दैट पर्सन इज नॉट इंक्लूडेड एज योर ब्लड रिलेटिव। ऐसा नहीं हो कि आप अपने मामा का नाम दे रहे हो, आप अपने पापा का नाम दे रहे हो, अपने चाचा का नाम दे रहे हो। नो, आपको अपने ब्लड रिलेशन के अलावा किसी का नाम देना है जो कि आपकी ऑथेंटिसिटी, आपकी ऑनेस्टी को प्रूव करे, ठीक है, गारंटी ले। और मेक श्योर वो जो पर्सन का नाम आप दे रहे हैं वो बहुत ही रिलायबल और ट्रस्ट वर्दी हो, वो हमेशा आपके बारे में अच्छा बोले। अदरवाइज अगर वो आपके बारे में कोई नेगेटिव फीडबैक दे देता है, क्योंकि ये जो नाम मांगे जाते हैं अक्सर इस पे क्रॉस वेरीफाई किया जाता है उस पर्सन को कॉल करके, और अगर उस पर्सन ने आपके खिलाफ एक भी नेगेटिव स्टेटमेंट दे दिया, फॉर एग्जांपल अगर ये कह दिया अरे ये तो टाइम से आता ही नहीं, हमेशा लेट रहता है, या फिर ये कह दे कि अरे ये तो काम लेना ही नहीं चाहता, कोई काम करना ही नहीं चाहता, हमेशा अवॉइड करता है नए काम को लेने में, इस टाइप की अगर स्टेटमेंट कोई दे देता है तो आपके सिलेक्शन पे असर आता है। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे पर्सन नहीं चाहिए होते हैं जो कि काम ना करे या कोई अप टू द मार्क ना हो ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेक्टेशन पे, ठीक है। तो आपको बहुत ही सोच समझ के ऐसे पर्सन का नाम देना है जो हमेशा आपकी अच्छाई करे, आपके बारे में हमेशा अच्छा बोले। क्लियर? द नेक्स्ट थिंग कम्स अबाउट योर पर्सनल डिटेल। सी लास्ट में एक ब्रीफ पर्सनल डिटेल आपको देना होगा, लाइक योर if you are single you will add your father name, mother name. If you are married you will add your husband name, wife name, about your date of birth, about your nationality, languages known and so on. If आपको जो भी छोटे छोटे से आपको देने हैं बहुत ही ब्रीफ में देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट वुड बी योर declaration part. Declaration part is that you will have to declare that the above sentences, above information is accurate or correct, ठीक है, फैक्ट बेस है। आपको अगर इसमें से एक भी इंफॉर्मेशन, इफ एनी इंफॉर्मेशन इज फाइंड रॉन्ग इन अ रॉन्ग वे, सो यू विल टेक अ गारंटी ऑफ इट दैट द अबव इंफॉर्मेशन इज राइट। क्लियर? सो डिक्लेरेशन पार्ट में आपका डिक्लेरेशन लिया जाता है। नेक्स्ट इज योर डेट, प्लेस एंड फुल नेम। सबसे लास्ट में इस टाइप से आपको लिखना रहेगा। डेट यहाँ पे होगा सबसे लास्ट में, उसके नीचे जस्ट आपको प्लेस लिखना है और उसके सामने आपको फुल नेम लिखना है। मैंने आपको स्क्रीन पे ऑलरेडी दिख रहा है, इधर की तरफ आपको डेट और प्लेस लिखना है राइट हैंड की तरफ, और लेफ्ट हैंड की तरफ आपको लिखना है डेट एंड प्लेस, एंड राइट हैंड की तरफ आपको फुल नेम लिखना है। क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ओके। सो आप लोग को लेट ना हो रहा हो तो मैं जरा सा 2 मिनट और लूंगी आप लोगों का। मुझे लग रहा है 15 मिनट में ऑलरेडी एक्सटेंड कर दी हूँ। डू यू हैव टाइम फॉर 5 मिनट्स मोर? Yes, ma'am. क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आज ये कंप्लीट कर दूं और कल आप लोग एक अपना रिज्यूमे बना के दिखाइए मुझे, ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग इज द टिप्स ऑफ रिज्यूमे। आपको जो जो टिप्स ध्यान रखने हैं रिज्यूमे क्रिएट करते समय, मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ। एक तो कंसाइज राइटिंग स्टाइल, बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना है, ठीक है। पैराग्राफ में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए, लाइन बाइज लाइन, ठीक है। दूसरा वेल पंक्चुएटेड होना चाहिए, पंक्चुएशन का बहुत ध्यान रखिएगा, फुल स्टॉप, कॉमा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से, ब्रैकेट कहाँ लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, ये पंक्चुएशन पे बहुत ध्यान रखना है। फैक्ट बेस्ड होना चाहिए, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन आपको नहीं डालना है, ठीक है। बहुत ही लॉफ्टी में एम्बिशंस नहीं डालने हैं। नेक्स्ट इज वेल फॉर्मेट होना चाहिए आपका। नेक्स्ट इज फोकस ऑफ 7 C's, ये आप लोगों ने शायद इंग्लिश में पढ़ा होगा। क्लैरिटी होनी चाहिए, कंप्लीटनेस होना चाहिए, करेक्टनेस होना चाहिए, कंसाइसनेस मतलब प्रिसाइज होना चाहिए,
concreteness and consideration. Next would be right keyword use करिए. जो कीवर्ड्स आप लोग समझ ही रहे हैं, जो आपको वर्ड्स यूज करने हैं, डिक्शन यूज करने हैं, वो बिल्कुल राइट होने चाहिए, टेक्निकल वर्ड अगर आप यूज कर रहे हो तो. नेक्स्ट वुड बी कोई भी लिस्ट बनाना है, जैसे आपको अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखनी है तो प्लीज बुलेट का यूज करिए. बुलेट कंप्यूटर में होते हैं, ये जो ये आप देख रहे हैं ना, डॉट देख रहे हैं, दिस इज नोन एज बुलेट. ठीक है, तो आप जब बुलेट क्रिएट करेंगे, कंप्यूटर में बहुत सारे डिजाइन होते हैं, आप उसको यूज कर लीजिए. नेक्स्ट वुड बी बेसिक फॉन्ट होना ओनली चाहिए. बुलेट का ही यूज करना है और कोई डैश या फिर स्टार इस टाइप का कुछ नहीं. बुलेट में Arrow. मैम सारे आते हैं, जो एरो और वो सारे होते हैं ना, वो बुलेट सी. बुलेट इन द सेंस लिस्ट, जैसे मैं आपको ये लिस्ट दिखा रही हूँ, ये मेरी लिस्टिंग है, राइट. मैं जो पॉइंट्स लाई हूँ ये सारे, ये लिस्टिंग है. तो लिस्टिंग को मैंने कैसे शो किया है, इस बुलेट से शो किया है, राइट. तो बुलेट में बहुत सारे, आप जब कंप्यूटर में देखेंगे, बुलेट को क्लिक करेंगे तो वहां बहुत सारे डिजाइन आपको मिलेंगे. आप उनमें से कोई भी डिजाइन यूज कर सकते हैं, राइट. वो एरो भी हो सकता है. आप देखिए इसमें ही आपको डिफरेंस दिख रहा है, 2 बुलेट्स मैंने यूज किए, 2 डिजाइन है. एक तो ये आपका डॉट है, एक आपका ये है, राइट. तो ये डिजाइन है, जो आप किसी भी डिजाइन को यूज कर सकते हैं. राइट कीवर्ड हो गया, बुलेट हो गया. बुलेट को लिस्टिंग करने के लिए होता है. ठीक है. बेसिक फॉन्ट जो हम लोग जनरली फॉन्ट मानते हैं रिज्यूमे क्रिएट करने के लिए, अगर आप नॉर्मल अपना कंटेंट लिख रहे हैं वो 12 में रखिए, और कोई हेडिंग लिख रहे हैं तो वो 14 फॉन्ट होना चाहिए उसका. ठीक है, जो जनरली माना जाता है. बाकी आपके ऊपर है, आप कैसे उसको और अट्रैक्टिव बना सकते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट द रिज्यूमे पार्ट. नाउ एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? Do you have any question, any Please query? send Yes. soft copy of this content of resume. I will send you the video. Soft copy क्या करोगे आप? मतलब मैं समझी नहीं. हाँ, वीडियो में वीडियो आपको भेज वीडियो रही हूँ. वीडियो. हाँ हाँ, ऑफ कोर्स डेली आई विल गिव यू द वीडियो. और मैं आपको आपका वीडियो तो भेज ही रही हूँ. आपके देखो, सी देयर इज अ डिफरेंस. मैंने आज आपको 2 वीडियो भेजे हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन का. एक तो जिसमें कंटेंट पूरा है, एक आपका वीडियो है. सो देयर इज अ डिफरेंस. योर वीडियो इज फॉर यू टू गेटिंग योर फीडबैक. ठीक है, जैसे आप अपने एक्सप्रेशन देख पा रहे हो, आपके लैंग्वेज यूसेज देख पा रहे हो, आप कैसे बोल रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल क्या है. आपका फीडबैक देखने के लिए आप अपना वीडियो देखिए, जो हम क्लास की वीडियो भेजते हैं. पढ़ने के लिए जो हम आपको अदर वीडियोस भेजते हैं, वो आप यूज करिए. ठीक है, तो हम दोनों वीडियोस आपको भेजेंगे, आप दोनों की हेल्प ले सकते हैं पढ़ते समय. ठीक है. सो नाउ इट्स योर टर्न. डू यू हैव एनी क्वेश्चन? Yes, Rahul, Harshita, Richa ji, do you have any question regarding it? You all clear about the resume content? Yes. Yes, ma'am. Okay, very nice. So your home assignment is that you will have to create your resume, and tomorrow we will discuss about your resume. Clear, everyone? Okay. Okay, so that's all about for today's class. Okay, thank you everyone. See Thank you you, ma'am. tomorrow. See Thank you you. tomorrow. Thank you, Have a nice bye. evening. Bye bye. Bye, ma'am.